ओके, सबने प्रैक्टिस किया आज का डे 1? Yeah. किसी का डे 2? ओके, किसी I ने? started today only, ओके, गुड। and I did half in the morning, half in the evening. ठीक है, इट्स ओके, गुड। ओके, तो पीडीएफ पढ़ा है किसी ने? कुछ क्वेश्चन तो नहीं है पीडीएफ में? किसी कुछ पूछना है, कुछ नहीं समझ में आया हो? ओके, देन स्विच ऑन योर कैमरास। अपने आप को म्यूट पे डालें। हम सबसे पहले मेडिटेशन कर लेते हैं। Okay. And actually, when we are healing the back side of the parts, unable to connect to the hands. Say, इट्स for ओके। example, back side of the heart chakra, solar plexus. See, it's just a beginning, right? You have just started today, day before yesterday. So slowly and gradually, you will be habitual. Your hand will reach. So whatever you will do, something new, anything. So it will take time. So don't have doubt and don't think so much that hand has not reached. But if यहाँ पे हार्ट चक्रा है और हाथ यहाँ तक भी पहुंच जाता है, so it means healing is done to that point और because ये आप सब 2-3 लोग ना inches थोड़ा मीन्स मिडिल दूर है। क्लास फैमिली का है। ऐसा ये सी हो सब नहीं जरूरत है। वो मैं बोलने के लिए बोल रहा हूँ उन लोगों का ऐसा है नॉर्मल मीन्स Parvati Devi. And I am getting the sense, a sensation of something, pressure in हम्म between the hands and the body for about हम्म 3 inches. After ओके, 2 minutes, am I audible to जस्ट you clearly? जस्ट अ मोमेंट, लेट मी चेक। सो sometime yes, now please। Okay. Yeah, When I so am energizing or stabilizing the energy, hmm after 2 minutes or 2.5 minutes, my hands hmm are forced to backside. हाँ, so it's very good, no? If it's forcing you to outside, it means your aura is expanding। आपका Okay. aura इतना है, That your aura is only till here, 3 inches, 4 inches, right? So when it's expanding, it means you are healing yourself and your body, mind, soul, heart, everything is receiving energy and your aura is expanding. So this is very good actually। बहुत अच्छा। of course, I am also a yoga trainer. Ah, very good। I do, but only for myself। I can't teach। I don't have that you Of know course, right now I am also not giving any training because okay। once upon a time when I am going for training, I met with accident and this bone is Yes, shoulder is dislocated. dislocated, So okay। I cannot give some postures. Yeah। This one like that. Hmm. So I stopped giving the training. So only personalized or customized training for Yes, one or two whoever is required. yes, for daily purpose, because yoga also work on heart, body, mind, and soul. Some people just thought that yoga poses are only just a asana or something. No, it's beyond all this. It heal our mind, soul, each chakra. It works Yes. on chakra also. So when your chakras are healed, it means you are healed physically, mentally, emotionally. All the aspects of your life are healed. So I was doing just chit chat, so waiting for more people to join, but I think we have to start now. So let's start. आप सब take your positions, how you are comfortable, sit properly। अगर आप वैसे नहीं बैठ सकते तो you can spread your legs on sofa, bed या चेयर पे बैठ सकते हैं टेक लगा के। make sure your head is not resting with any support। Mm. Yeah,
Okay, please confirm music is audible, volume is fine, or you want me to increase or decrease the volume. And please everyone mute yourself. So now sit properly, close your eyes and open your head, open your hands facing towards sky. Take a cup of your hands, fingers, all fingers joined properly. सारी उंगलियों को अच्छे से बंद करके कप के शेप में अपने हाथों को रखकर am I audible along with this music? Okay, good to go. Thank you. So now you all can close your eyes. No audio. Yes, I'm just checking. पूनम जी आप नहीं कर रहे मेडिटेशन? So now we are starting. Just close your eyes, sit properly. Say thanks to Reiki energy, मन ही मन Reiki energy को, Reiki डॉक्टर मिकाऊ सुई जी को, अपने गुरु, गॉड, गॉडेस सबको थैंक्स कहें. Say thanks to all divine energies, Reiki energy, Reiki डॉक्टर मिकाऊ सुई जी, your teachers, each and everyone. Thanks to yourself also. अपने आप को भी धन्यवाद कहें. Relax your body completely. Focus on each part of your body. अपनी शरीर के हर एक हिस्से पर ध्यान दें. Start from your feet. अपने पैरों से शुरू करें. Tell your feet to relax. अपने पैरों को रिलैक्स होने के लिए कहें. अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपने पैरों से अपने काफ मसल slowly and gradually pay your attention to your calf muscles and tell your calf muscles to relax. अपने calf muscles को relax होने के लिए कहें. Slowly and gradually this divine Reiki energy covering you and pay your attention to your knee. अपने घुटनों पर ध्यान दें. Tell your knees to relax. अपने घुटनों को आराम करने के लिए कहें.
जैसे ही घुटने आराम करें, अपना ध्यान अपने थाइस पर ले जाएं and tell your thighs to relax. Slowly and gradually move upper body side and say thank you and relax. Say thank you and relax to your lower abdomen, your hips, अपने पेट के निचले हिस्से और abdomen को, hips को रिलैक्स करने के लिए कहें। Gradually and slowly move forward. Tell your upper abdomen to relax. अपने पेट के ऊपरी भाग को रिलैक्स करने के लिए कहें। धीरे धीरे अपनी छाती और कंधों, बाजू और हाथों को रिलैक्स करने के लिए कहें। Slowly and gradually tell your chest, your arms, your hands and fingers to relax. Now tell your throat to relax. अपने गले को रिलैक्स होने के लिए कहें। Tell your whole entire back to relax. अपनी पूरी पीठ को आरामदायक हो जाने के लिए कहें। Now tell your face, each and every body part on your face, lips, cheeks, nose, eyes, forehead, इन सबको रिलैक्स होने के लिए कहें। And now tell your head, your crown chakra to relax. Slowly and gradually focus on your breathing pattern. Inhale deeply, लंबी गहरी सांस लें। Exhale slowly, उस श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। Inhale, exhale, inhale, exhale। अपना ध्यान अपने श्वासों पर ही केंद्रित रखें। Inhale, exhale। Now visualize that Reiki divine energy flowing through your both palms chakra। ऐसा महसूस करें या देखें कि आपके दोनों हथेलियों से रेकी डिवाइन एनर्जी निकल रही है। और ये आपको पैरों से लेकर सर तक कवर कर रही है। This Reiki divine energy covering your whole body, head to toe. Front and back, left and right is completely covered by divine Reiki energy. आपके आगे पीछे दाहिने बाहिने चारों तरफ रेकी डिवाइन एनर्जी
भरपूर मात्रा में फैल चुकी है। Now feel the aura around you and thank it with love and respect. अपने आभा मंडल को, ऑरा को महसूस करें और इसे प्यार और सम्मान दें। अगर आपके शरीर के किसी भी हिस्से में कोई दुख, तकलीफ, दर्द है, उस हिस्से पर ध्यान दें, उस हिस्से को ज्यादा प्यार और सम्मान दें। If you have any body pain, any problem, any kind of issue, pay more attention to that particular body part. Give more love and respect to that body part. And say thanks to your higher self. और अपने सर्वोत्तम अच्छे को धन्यवाद कहें। Now it's time to expand your aura more and more. अभी समय आ गया है कि आप अपने आभा मंडल को और बड़ा करें, इतना बड़ा करें focus on your aura and expand your aura in the room wherever you are sitting, you are present. आप जहाँ पर भी बैठे हैं उस कमरे में अपना पूरा ऑरा फैला दें या फैला हुआ महसूस करें। अभी ये कमरे से आपके पूरे घर में फैल गया है। Now your own aura expanded in your entire home. Slowly and gradually, your aura is expanding in your colony, your area, your town. धीरे धीरे आपका आभा मंडल आपके पूरे कॉलोनी, आपके नगर, आपके शहर में फैल गया है। Your aura is expanding more and more. आपका आभा मंडल बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। Now your aura is expanded more and more. And you have gone out of the city. आपका आभा मंडल आपके शहर से भी बड़ा हो गया है। आपके शहर से आपके स्टेट में, आपके राज्य में पहुंच चुका है। धीरे धीरे आप स्टेट से पूरे देश में फैल गए हैं। Your aura has expanded in your country. Now slowly and gradually entire world, धीरे धीरे आपका आभा मंडल पूरे संसार में फैल गया है। इस संसार में नदियाँ, झरने, पर्वत, पहाड़, humanity, animals, trees, you are touching each and everything in the world. Your aura has expanded throughout the world and touching all the rivers, canals, mountains, humanity, trees, animals, birds, each and everything.
आभा मंडल इन सब चीजों को छू पा रहा है। Experience the entire process. Your aura is touching each and everything. Feel the fold of love energy from the heart. एनर्जी को अपने हृदय चक्र पे महसूस करें। Maintain the feeling of love for few more minutes. Now it's your time to take the love from the world or to give the world love to the world. अब ये आपका समय है। आप संसार की हर चीज को प्यार दें या उससे प्यार लें। अब धीरे धीरे अपना ऑरा को वापस आने को करें। Slowly and gradually withdraw your aura back towards your body. आपका ऑरा सिमटता हुआ संसार से, पूरे देश से, अपने देश से अपने राज्य से अपने शहर से अपने नगर से अपनी कॉलोनी, अपने घर और अपने घर से आपके कमरे और आपके अपने कमरे से आपकी उस जगह से आपकी बॉडी में वापस आ गया है। Withdraw your aura back towards your body, from world to your country to the city, city to town, from town to the house, your place, from your place to your room, and now finally in your body. Thanks yourself and divine Reiki energy to your God, Goddess for this beautiful experience. Now visualize that Reiki divine energy flowing in your whole body. अभी ऐसा महसूस करें कि रेकी आपके पूरे शरीर में खून और पानी की तरह दौड़ रही है। Reiki flowing in your whole body like blood and water. रेकी को अपने अंदर महसूस करें, रेकी के प्यार को अपने अंदर महसूस करें। जिस तरह हमारे शरीर के अंदर खून और पानी की हलचल हो रही है, जिस तरह हमारे शरीर में खून और पानी लगातार चल रहे हैं, उसी तरह से रेकी इज फ्लोइंग in our whole body, mind, heart and soul. When Reiki divine energy is flowing,
It's healing our body, mind, heart, and soul. Reiki know what to do, where to do, and how to do. रेकी को पता है कब और कैसे करना है, किसे करना है. So trust Reiki divine energy. Say thanks to Reiki divine energy. You are full of Reiki divine energy. आप Reiki एनर्जी से भरपूर भर चुके हैं. Say thanks to Reiki energy, Reiki Dr. Mikao's Reiki. Say thanks to your masters, God, Goddess. Say thanks to yourself. अपने आप को, सभी को, रेकी डॉक्टर मिकाओ सुई को धन्यवाद कहें. धीरे धीरे अपने शरीर को हिलाएं डुलाएं. ट्विस्ट एंड टर्न योर बॉडी. अपने हाथों को रब करते हुए अपने पूरे शरीर पे आशीर्वाद के लिए फैलाएं. जब भी आपको कंफर्टेबल लगे आप आंखें खोलें. Okay, so one by one, That is if you have to say anything, so you are that is most beautiful welcome now. experience. हाँ जी. Really, very amazing. Very beautiful experience. Okay. Thanks for giving such a good experience. Yeah, thank you so much. आपने enjoy किया. Now your healing process will be fast. Okay? चलिए, good. Thank Welcome. आरजे जी, आप थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, कोई आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे. आई थिंक फैमिली में सबके बीच में थे. तो इट्स ओके, अगर आप कुछ लोग डिस्टर्ब हो गए हैं किसी भी वजह से, तो आप सेम रिकॉर्डिंग पे सुन के दोबारा करना. आई रियली वांट कि आप सब लोग इसको अच्छे से एक्सपीरियंस करें, बिकॉज दिस इज रियली ब्यूटीफुल meditation. It's just a beginning, but it's a powerful. Actually, what happened is my charge suddenly it showed it's going, so I Okay. had to plug it in. I had forgotten, Oh, and I just came from work. oh. So something happened, which is why I was looking now. Mm. Towards the end, I could get some very beautiful fragrance, Oh, which I was afterwards. I was trying to smell, but I couldn't get it afterwards. that's very So, good. Thank and you. I thought It's is just somebody come in the room and I can smell, but nobody has come in the room actually. nobody has come into the room. Actually, you went out and touched the entire world, no? So maybe you have touched Okay. someone beautiful, divine energy. Sometime, when I used to do this, Mega, I mostly reach to the temple. So I used to touch the temple. Okay. अच्छा, अब तो मौका मिला है, सारे मंदिर में दर्शन कर लो. तो ऐसा, Hmm. हर किसी का अपना अपना होता है. तो बचपन ऐसा था that we were मीन्स हमें बाहर बहुत ज्यादा जाने का मौका नहीं मिला. डे टू डे लाइफ में पेरेंट्स अपना बिजी थे, तो डिडंट गेट चांस कि हम ज्यादा जगह पे जा सके. एक्सपेक्टेड ओनली द हॉलीडे वेकेशंस. तो जाना नहीं होता था. तो सुनते थे सबसे कि आज हम वैष्णो देवी गए हैं, आज हम चिंतपूर्णी गए हैं, आज हम हरिद्वार गए हैं, ऐसा सुनते थे. तो मुझे बहुत मन होता था कि मैं भी जाऊं. देन आई लर्न रेकी. तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ही यही था, दैट आई वेंट टू
Haridwar, Ganga Kinare, and I had that, holy bath. So everybody has their own different डेस्टिनेशन टू रीच, अपने मन में सोचा होता है। तो जब हम कभी भी कोई ऐसी मेडिटेशन करते हैं जहाँ पे हमें कहीं जाने का मौका मिलता है, तो वी रीच देयर बिकॉज आवर सोल नो वेयर टू गो। Okay. हाँ, तो आप भी कहीं कहीं कुछ होगा ऐसा कनेक्शन, तो यू हैव टच दैट पर्सन और दैट प्लेस और दैट थिंग वेयर यू हैव दैट फ्रेगनेंस, सो वेरी ब्यूटीफुल। आई एम थैंक्स टू यू। Thank you. Thank you so much. वेलकम। It was a very good experience, very relaxing also. Yes, you will relax when you can do it daily also. You can switch on the this video and you can Okay. do this meditation daily. But first 24 body parts, that is a homework you have all have to do for 21 days Yeah, to I'm get falling more back and on that. more. Yes, so to get more and more beautiful experiences. This is just a beginning. You have just touched the learning is level 1. आपने level 1 सीखा, so you have learned. तो आपका फर्स्ट नंबर जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो कंप्लीट हो गया। So now it's practice. After practice, you experience. Okay. Okay. किसी और का कुछ एक्सपीरियंस? इट कैन बी, इट कुड बी एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ नहीं महसूस हुआ देन ऑल्सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। इट्स किसी किसी को सोच के ना, हमने ये नहीं सोचना कि उसको बहुत अच्छा फील हुआ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं होना भी अपने आप में बहुत कुछ होना है, बिकॉज समथिंग इज ऑलवेज देयर इन स्टिलनेस। अगर आप स्टिल हो, आपको कुछ नहीं हुआ, तब भी मतलब कहीं कुछ बहुत ऐसा अच्छा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, विच रिक्वायर्ड स्टिलनेस। ठीक है, जहाँ पे आपको स्टिल होने की भी जरूरत है। तो ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट रिलेटेड टू अवर प्रीवियस सेशन, सो प्लीज मोस्ट वेलकम, आप पूछ लीजिए। So yesterday we have learned that how to heal self and others. So आप दूसरों की प्रॉब्लम सुनेंगे। समटाइम्स क्या होता है, कोई आपके पास आया और आप बोलोगे कि आपको स्कैन करना है, स्कैनिंग इज फाइन, बट जो मैंने आपको पॉइंट्स दे दिए हैं ना उसमें, आपके पीडीएफ में, उसमें बहुत ज्यादा मीन्स 100+ डिसीजेस के, 100+ प्रॉब्लम्स के उसमें सोल्यूशन है कि कहाँ कहाँ पे आपको हीलिंग करना है, जहाँ पे आप हीलिंग करके उन प्रॉब्लम से, उन डिसीजेस से, उन इश्यूज से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपने उसको देखा होगा पीडीएफ में, जहाँ से कल मैंने आपको पढ़ के बताया था। तो 100+ वहां पे जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन लिखा हुआ है। बट स्टिल अगर आप के पास कोई भी ऐसा आता है, कोई आपको बोलता है कि मुझे ऐसे प्रॉब्लम है, तो आप अपनी बुक खोलो, आपको हर बार स्कैन करने की जरूरत नहीं है। स्कैनिंग इज वेरी ब्यूटीफुल, करना चाहिए, अच्छी बात है। बट नाउ यू आर इट फर्स्ट पॉइंट, तो आपको नहीं पता, फर्स्ट स्टेप में हो, फर्स्ट लेवल में हो, आपकी अभी जस्ट शुरुआत है। तो यू नेवर नो कि सामने वाले पर्सन पे प्रॉब्लम तो देखने में या सुनने में आपको छोटी लग रही है, बट यू नेवर नो वेयर फ्रॉम इट्स कमिंग, ये कहाँ से आ रही है और कितनी इंटेंस है, कैसी है, यू डोंट नो। तो एकदम से जंप इनटू करने की बजाय कि उसको आप स्कैन करो और चेक करो, तो इंस्टेंट पहले उसको हीलिंग करना शुरू करो, बिकॉज व्हेन यू हील ना, यू हैव मोर एक्सपीरियंस। 3-4 दिन उसको हीलिंग करो, फिर उसको आप स्कैन करो, क्योंकि अगर आप एकदम से स्कैन कर लोगे अभी के लिए, तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, आपको एनर्जी अच्छे से नहीं समझ में आया, या एनर्जी कुछ इंटेंस हुई, नेगेटिव एनर्जी, तो यू मे गेट इन अ ट्रैप। ट्रैप कैसा हो जाएगा कि आपको कैच हो जाएगा एंड यू विल फील ड्रेन, आपको थोड़ा ड्रेन होगा, आप थोड़ा थकावट महसूस करोगे, तो आप बोलोगे कि मेरे ऊपर आ गया। तो मेरे ऊपर नहीं आ गया, इट्स ऑल अबाउट कि आपका स्कैनिंग पार्ट अच्छे से नहीं हुआ, क्योंकि स्कैनिंग में आपको ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, यू नीड एक्सपीरियंस फॉर डूइंग एनी काइंड ऑफ स्कैनिंग। जब आप स्कैनिंग करते हो तो आपको बहुत ऑब्जर्वर बन के देखना पड़ता है। ठीक है, आप एग्जामिन कर रहे हो। स्कैनिंग मीन्स व्हाट, जैसे डॉक्टर अपना एग्जामिन करते हैं, हमारी बॉडी को टच कर कर, कई बार दबाकर पूछते हैं, डू यू हैव पेन हियर, है ना, इस तरह से वो पूछते हैं, क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, अपने इक्विपमेंट से हमें टच करके देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो राइट नाउ यू डोंट हैव एनी इक्विपमेंट्स, यू आर जस्ट सेंसिंग विद योर हैंड्स। सो when you are sensing with your hands, so maybe pain is intense, so you may grab it because you don't know. But if you are scanning and you are feeling that time that you are feeling more sensation which is painful to you, which is not pleasant to you, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, then you start rotating your hand,
anti-clockwise and clear all the negative energy and blockages and ground in the earth for purification. तो immediately अब वहां पे स्कैन को स्टॉप करके, मतलब स्कैनिंग पे फोकस नहीं डालना. व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस, दैट डोंट फोकस ऑन डूइंग स्कैनिंग के मुझे पता चल जाए. ठीक है, फोकस ऑन हीलिंग एंड क्लींजिंग ऑफ योर सेल्फ. फर्स्ट इज इंपॉर्टेंट हमारी खुद की प्रोटेक्शन. सेल्फ हीलिंग, सेल्फ प्रोटेक्शन इज इंपॉर्टेंट. तो 21 डेज में तो बिल्कुल आप स्कैनिंग नहीं करेंगे. 22nd डे से भी अगर आप किसी को, अपने फैमिली मेंबर्स को हीलिंग करना चाहते हैं तो उनको हीलिंग ही करें, स्कैनिंग नहीं करें. जब आपको 40 डेज का 2 मंथ्स का कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है, अच्छा, देन यू जंप इन टू स्कैनिंग. क्लियर है? स्कैनिंग क्यों मना कर रही हूँ एकदम से? So we should ask them what the problem is and then just focus and heal it. Yes, you have all Okay. the problems in your PDF. So आप वहां से पढ़ के उनकी हीलिंग स्टार्ट कर सकते हैं. बट अगर आपको कुछ लगता है ऐसा दैट इट्स नॉट मेंशन्ड इन द PDF, यू कैन सिंपली आस्क इन द ग्रुप, है ना. अब ग्रुप में पूछ लो कि ये प्रॉब्लम है, इसका क्या करें. क्योंकि बहुत सारी चीजों को वहां पे मेंशन किया गया है, बट स्टिल नई नई चीजें आ रही है ना. हमने सीखा था या हमारे से पहले सीखा था लोगों ने 2000 और मतलब आई लर्न रेकी इन 2011, राइट. तो 11 में सीखा था, तब तो कोविड नहीं था, किसी ने तो सिखाया ही नहीं कोविड आएगा एक दिन और कैसे हील करना है ना. कैंसर होगा तब थोड़ी शुरुआत हुई थी, तो कैसे हील करना है. तो इट्स ऑल योर जर्नी व्हेन यू आर लर्निंग, व्हेन यू आर एक्सपीरियंसिंग रेकी डिवाइन एनर्जी, और ऑल डिवाइन एनर्जीज गाइड यू व्हाट टू डू, हाउ टू डू. ठीक है? एनी क्वेश्चन? Okay, so now it's very important part to know or to learn about that why energy exchange important. मैंने थोड़ा सा पहले मेंशन तो किया था आपको, बट इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि एनर्जी एक्सचेंज क्यों जरूरी है. एनर्जी एक्सचेंज आप देखो, बहुत पहले के टाइम में, बहुत पहले के टाइम के पुराने जमाने में अगर ऐसे बोले तो क्या होता था, बार्टर सिस्टम था. तब मनी नहीं थी, करेंसी नहीं था. तो हर किसी को कैसे एक दूसरे से एक्सचेंज करना होता था. चावल वाला कपड़े वाले के पास गया, क्योंकि उसको कपड़े चाहिए अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए. सर्दी का मौसम है, ठंडी आने वाली है, तो उसको कपड़े चाहिए, गर्म कपड़े चाहिए. तो वो अपने चावल लेके कपड़े वाले को ढूंढने गया और उसके पास गया कि मेरे चावल ले लो और तुम मेरे से मुझे कपड़ा दे दो, मुझे चाहिए. तो वो इस तरह से एक्सचेंज करते थे. कपड़े वाला भी कहता था हाँ मुझे अनाज चाहिए, मैं चावल और आटे वाले को कपड़ा देके उससे चावल और आटा ले लेता हूँ, दाल ले लेता हूँ. तो इस तरह से वो एक्सचेंज करते थे. तो विच इज डिफिकल्ट, है ना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट बना. बट वो एक्सचेंज करते थे. तो पहली थ्योरी तो हम इसीलिए सबसे पहले ये वाला बोला, क्योंकि वहां पे एक्सचेंज कर रहे हैं हम, अपनी जरूरतें एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं. मेरे पास ये है, तुम्हारे पास ये है, तुम मुझे ये दे दो, मैं तुम्हें अपनी चीज दे देता हूँ, इस तरह से. इन द यूनिवर्स, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था, आई डोंट रिमेम्बर द डे, डे 2 और 3, I said that nothing is free in the universe. When you born, the moment you land on the earth, जैसे ही आप धरती पे आते हैं, अर्थ रैम पे आते हैं, आपको एक्सेल करना होता है, इनहेल करना होता है. और जैसे ही हम इनहेल और एक्सेल करते हैं, हमारा आदान और प्रदान, गिव एंड टेक, हमारा जो फ्लो है वो चलना शुरू हो जाता है. मोमेंट यू विल स्टॉप एक्सेलिंग, जिस समय भी आप एक्सेल करना बंद कर देते हो, एक्सेल करना बंद करना मतलब आप सांस को छोड़ोगे नहीं तो आप दूसरी सांस भर नहीं पाओगे, आप इनहेल नहीं कर पाओगे. तो जब आपने देना बंद किया तो आप ले भी नहीं पाओगे. तो यूनिवर्सल रूल जो है वो पहला यहाँ से क्लियर हो जाता है जब हम पैदा होते हैं. लेकिन बड़े होते होते हम, है ना, दुनियावी चीजों में, सोशलिज्म में, बहुत और चीजों में हम डिस्ट्रैक्ट होके बहुत सी कॉमन और ब्यूटीफुल चीजों को भूल जाते हैं, उसको साइड पे कर देते हैं. तो दिस इज अ ब्यूटीफुल नेचर्स लॉ, यूनिवर्स का लॉ है, या कुदरत का, प्रकृति का ही लॉ है कि जब आप किसी को दे नहीं सकते तो आप लेने के लायक नहीं हो, ऐसा भी बोला जाता है. और अगर आप किसी को देने वाले हो तो आप बहुत कुछ लेने के काबिल हो जाते हो. तो इसीलिए गिव और टेक के रिलेशन को हमें कंप्लीट करना चाहिए. इसको हम दूसरी लैंग्वेज में गिव और टेक ना बोलकर, या एक्सचेंज ना बोलकर, हम बोलते हैं कंप्लीट द फ्लो ऑफ एक्सचेंज. कंप्लीटिंग द फ्लो ऑफ एक्सचेंज मीन्स जब आप किसी को दे रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपके पास आने के रास्ते खुल जाते हैं.
जब आप किसी को कुछ भी अच्छे भाव से दे रहे हो तो आपके पास अच्छे भाव से आने के लिए ही अपने आप डोर्स ओपन हो जाती हैं। अब मैं प्रेजेंट सिनारियो को लेके बात करूंगी। प्रेजेंट सिनारियो में क्या है, हम किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ गए, कुछ ऐसा बड़ा हो गया हमारे साथ और हम बहुत ज्यादा डेस्परेट हैं कि हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाए। कोई तो भी आए, कुछ तो भी करे, बट मुझे इस प्रॉब्लम से निकाल दे। यू आर सो डेस्परेट, आप इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। सडनली आप बैठे हो, आपका फ्रेंड आया, कोई आया, आपको उसने बोला, उसने आपको बताया कि ठीक है जी, वहां पे तो एक बहुत अच्छे गुरु हैं, या बहुत अच्छे कोई एस्ट्रोलॉजर है, या कोई एबीसी पर्सन, कुछ तो भी, कोई तो भी है, उसके पास चल के लेके चलता हूँ तुझे, तो यू विल बी फ्री फ्रॉम दिस ट्रबल। आप उसी टाइम बोलते हो चल यार मैं अभी ऐसे ही चलता हूँ, बिकॉज आई एम सो डेस्परेट। आप बहुत ज्यादा डेस्परेट हो वो अपना छुटकारा पाने के लिए। तो वो पर्सन आपको लेके जाता है और वहां पे जाते ही वो आपको बोलते हैं अच्छा ठीक है तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, आप उनको बताते हो, वो सुनते हैं, वो बोलते हैं ठीक है तुम ऐसे करो, जाकर ही ना अभी एबीसीटी चीज कोई ना ऐसा डोनेशन कर दो, दान कर दो। तो क्या आया वहां से आपको? मोस्टली हम यही बोलते हैं, हमें यही रेमेडीज मिलती हैं। हम किसी के पास किसी भी प्रॉब्लम के लिए जाते हैं तो वो जो भी हमें बताते हैं, व्हाट वी कॉल इट रेमेडीज। हम उसको उपाय बोलते हैं, हम उसको रेमेडीज बोलते हैं। वो रेमेडीज कैसे होती हैं? किसी को कुछ देना, किसी को कुछ खिलाना। वो पेड़ पौधे भी हो जाते हैं, कोई आपको बोल देता है ट्री लगा दो, मतलब हम, मैं भी बोलती हूँ, हम भी ऐसे बोलते हैं। तो व्हाट इज दैट? टू गिव। क्या बोलता है वो मैसेज? क्या है पहले तो? वो मैसेज ये है दैट यू हैव टू गिव। व्हाई यू हैव टू गिव? बिकॉज यू हैव नॉट गिवन इनफ टू गेट व्हाट यू वांट। वो गिव आपको क्या बोल रहा है कि आपने अभी तक वो ऐसा कुछ दिया ही नहीं जिसके बदले में, या जिसके बिहाफ पे, या जिसके कारण आपके पास जो आज नहीं है आपको वो मिल जाए। यू नो, सो थैंक यू सो मच इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो आई एम गेटिंग योर पॉइंट कि देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप अपना देने वाला भाव ओपन नहीं करोगे यू विल नॉट एबल टू टेक, आप ले नहीं पाओगे। तो वो कोई भी चीज होती है, कभी कोई बोलता है एनिमल्स को फीड करो, कोई बोलता है आप एनिमल्स को टेक केयर करो। तो टेक केयर करना या उनको खिलाना, वन टाइम भी खिलाना, इट्स ऑल अबाउट गिविंग। तो वो हमारी नेचर क्या क्या बोलते हैं। तो रेमेडी ऑलवेज, remedy means give. Why to give? Because you have not earned those blessings by giving, so that you can have those, or you get rid of that problem, है ना? तो जब हमारा देने वाला कैसे बोलूं, लाइक जब आपका देने वाला अकाउंट में से जब आपके ना डेबिट नहीं होता ना, तब क्रेडिट आना शुरू हो जाता है। बहुत ज्यादा कैसा क्रेडिट हो जाता है वो नेगेटिव क्रेडिट हो जाता है। आपकी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, काम नहीं बनते, स्टक फील करते हो, कुछ भी ऐसा होता है। तो वो वाला अकाउंट तो हमें उसको बैलेंस करना पड़ता है। तो बैलेंस करने के लिए वो हमें क्या बोलते हैं, या हम जैसे लोग क्या बोलते हैं, गिव गिव गिव। तब हमारे पास नहीं भी होता। बहुत ऐसी सिचुएशन, बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं, वो ये बोलते हैं कि दैट वी आर नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग दिस मच। तो हम उसको बोलते हैं ओके नो प्रॉब्लम, स्टार्ट विथ स्मॉल। जैसे आप थोड़ा सा स्टार्ट करोगे आना शुरू हो जाएगा, है ना? तो वो लोग फिर घर जाके क्या करते हैं, हम सब करते हैं, क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं, थोड़ा करते हैं। फिर उसके बाद फैमिली में से हम अपनी सेविंग्स निकालते हैं और बोलते हैं ये कर लो, हो जाएगा। देन वी यूज टू वियर द सच टाइप ऑफ स्टोन्स, जेम स्टोन्स जिसको बोलते हैं, वो डालते हैं। तो वो सब कैसे बनते हैं, वो जेम स्टोन्स भी कैसे आया? पैसे से ही आया। हमने क्या किया उसको, पहले तो पैसा खर्चा खरीदने के लिए, फिर उसको पहना, पहन के हमने क्या शो किया फिर यूनिवर्स को? ट्रस्ट शो किया, दैट वी आर ट्रस्टिंग यू। हमने ये कर्मा कर दिया, अभी तुम्हें हमारा टेक केयर करना है, मुझे जो चाहिए वो देना है। तो व्हेन यू आर वियरिंग सम सच अ जर्म स्टोन, या कोई रेमेडी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो यू आर टेलिंग योर सेल्फ, आप अपने आप को बार बार बता रहे हो, आप यूनिवर्स को बार बार बता रहे हो दैट आई ट्रस्ट यूनिवर्स, दैट आई ट्रस्ट डिवाइन एनर्जीज, कि आप मेरी हेल्प करोगे। आप वो एक्शन कर रहे हो, बार बार वो दे रहे हो, क्या दे रहे हो? अपना विश्वास दे रहे हो। क्या दे रहे हो? अपना उसको भरोसा दे रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो। तो इट मीन्स दिस वे, अगर हम पहले ही अच्छे से सब चीजें कर ले, कर्मा को वैसे करें, तो फिर हमें इस तरह से रेमेडीज या तो नहीं करनी पड़ेगी, या फिर लाइफ में वंस अ टाइम, वंस अ वाइल कोई ऐसा टाइम आता है जब हमें वो करना पड़ता है। तो इसलिए हमेशा कोई भी अगर कुछ भी आपसे मांगे तो मैं आपसे यही सुजेस्ट करूंगी कि अपने देने वाले अकाउंट को ना ओपन रखो। देने वाले अकाउंट को, लेने वाले को चाहे आप कभी मना कर दो, नहीं नहीं आई डोंट वांट, थैंक यू सो मच, आई ऑलरेडी हैव इट, प्यार से कैसे भी,
बट देने वाले अकाउंट को कभी मत बंद करो। देने वाले अकाउंट को हमेशा देते रहो। इफ यू हैव 100, एटलीस्ट गिव 10। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल वे जिससे आपका एनर्जी एक्सचेंज, जिसके आपका एनर्जी का फ्लो, दैट एनर्जी कैन बी एनीथिंग, वो एनर्जी का फ्लो आपकी लाइफ में कंटिन्यू रहेगा जब आपका कंप्लीट होता रहेगा। जब आपका वो फ्लो कंप्लीट होगा तो आपके पास ब्लेसिंग्स, आपके पास पावर्स, आपके पास डिवाइन एनर्जी, नेम, फेम, वॉट एवर यू वॉन्ट, एवरीथिंग विल विद यू। यूनिवर्स विल फेवर यू, उसको हम बोलते हैं कि यूनिवर्स हमें फेवर करते हैं। बहुत नामी ग्रामी है, हम लोग जानते ही हैं। अभी इतना बड़ा प्लेन क्रैश का हुआ तो रतन टाटा ने कितना कुछ दिया, बिकॉज ही इज अ गिवर। ही नो आई विल गिव, मल्टीप्ले होके मेरे पास वापस आएगा, बिकॉज दे नो द रूल, दे नो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल बोलो या नेचर का जो रूल बना है नॉर्मल गिव एंड टेक का वो बोलो। दे नो गिव टेक करने से ही मेरा जो फ्लो है वो कंप्लीट होगा। तो पहले ही हम जैसे जैसे ही सृष्टि को रचाया गया, ह्यूमंस बने, धीरे धीरे आदिवासी से हम थोड़ा और आगे आए, बढ़े, तो हमने बार्टर सिस्टम किया। जब बार्टर सिस्टम से उनको डिफिकल्टी लगी तो किसी बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन ने उसको एक करेंसी का नाम दे दिया। तो आज हम बहुत इजी वे में करेंसी को देकर अपनी चीजों से छुटकारा पा लेते हैं, या फिर अपने एनर्जी एक्सचेंज को कंप्लीट कर लेते हैं किसी के साथ भी। आप वहां बैठे हो, मैं यहाँ बैठी हूँ, तो हम फोन पे, जबकि मैंने पैसे को छुआ नहीं, आपने भी पैसे को छुआ नहीं, वी हैव नॉट टच द मनी, वी हैव नॉट फेल्ट दैट मनी को वो पकड़ के जो एक फीलिंग आती है अच्छे वाली कि मेरे पास इतने पैसे हैं, हम खुश होते हैं, हमने वो भी नहीं किया। बट आज के डेट में देखो, इलेक्ट्रॉनिकली अपने फोन में देखे वी गॉट सो मच हैप्पी एंड वी आर सेटिस्फाइड, वी आर कंटेंट इन दैट वी हैव दिस मच, यू नो। सो हैविंग, अपने पास होना भी आपको बहुत एक अच्छा एहसास कराता है, जो आप भरपूर फील करते हो, आप कंटेंटेड फील करते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी एक्सचेंज। तो ये मैंने आपको क्यों बताया, क्यों इंपॉर्टेंट था, कि आज के बाद आप अपने घर में किसी को भी हीलिंग करो, यू हैव टू चार्ज, because we don't have any relation with that to completing the flow of energy. ओनली पेरेंट्स को हम फ्री में कर सकते हैं, बिकॉज वी केम थ्रू दैम, हम उनके द्वारा आते हैं। तो अपने पेरेंट्स को आप बिल्कुल फ्री में करो, क्योंकि वो हमें, वी नेवर नो कि हमने उनको कितना तंग किया है, कितनी रातें खराब करी हैं, कितने उनके दिन खराब करे हैं, वो परेशान हुए हैं, हमें रेज करने में उन्होंने कौन कौन सी डिफिकल्टीज देखी हैं। तो हम सिर्फ उनके ही कर्जदार हैं, बाकी उनके अलावा हम किसी के भी कर्जदार नहीं है, किसी को भी ऐसा नहीं है कि हम एनर्जी एक्सचेंज उनके साथ कंप्लीट ना करें। पेरेंट्स ही वो हैं जिनके साथ हमारा एनर्जी एक्सचेंज जितना भी आपको देते जाते हो, उनको देते जाते हो, वो भी उनकी ब्लेसिंग से हमारे पास मल्टीप्लाई होके वापस ही आता है। बट हम उनके लिए हमेशा उनके देनदार ही है, वी हैव टू गिव देम। तो आप उनको हीलिंग, तो मैंने जब हीलिंग सीखा, जो मैंने समझा, लेवल 3 के बाद ही मैंने इसको बहुत अच्छे से गहराई से समझना शुरू किया, क्योंकि तब तक मैंने 3 लोगों से डिफरेंट डिफरेंट जगह से सीख चुकी थी। देन आई कम टू नो कि उनको अगर देते हैं ना, तो आपके पास बहुत आपका जो गिव वाला साइड है ना, वो भारी हो जाता है उनको देने से। तो आप गिवर वाली साइड पे रहते हो हमेशा। तो जब आप हमेशा गिवर वाली साइड पे हो ना, तो रिसीविंग ऑटो ऑटो पायलट पे आ जाती है। आपको रिसीविंग के लिए किसी को मांगना नहीं पड़ता, किसी से बोलना नहीं पड़ता, वो रिसीविंग कुछ भी हो सकता है। नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट मनी, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लेसिंग ऑल्सो, आई एम टॉकिंग अबाउट नेम एंड फेम ऑल्सो, आई एम टॉकिंग अबाउट each and every, even your breath, maybe your life is short, but because you are giving so much, जिसको देना चाहिए, जो उसके वर्ती हैं, अगर हम उनको देते हैं तो हमारी लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाती है। चाहे छोटी हो, वो ब्यूटीफुल बहुत हो जाती है, और मे बी इट कैन बी मोर लॉन्ग ऑल्सो। तो इट कैन बी एनीथिंग। तो पेरेंट्स को आप देख सकते हैं, लेकिन उसके अलावा इवन आई चार्ज फ्रॉम माई हस्बैंड, इवन आई चार्ज फॉर माई डॉटर व्हेन शी फॉल सिक, माई हस्बैंड आस्क, या मेरी डॉटर ही मुझे बोल देगी, अभी तो मेरे पास इतना आती है मम्मा, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, आप हीलिंग कर दो ना। अच्छा, हीलिंग से देख के बता दो मेरी फ्रेंड इस टाइम पे क्या कर रही होगी, यू नो। So then I will ask, go get money. So she will also go and bring from her piggy bank. Then I'll do her work. मतलब जो करने वाला है, कोई नहीं भी करने वाला है, बच्चा है बट पूछता है, तो आई ऑलवेज अटेंड हर क्वेरी, आई ऑलवेज एंटरटेन हर क्यूरियोसिटी, बिकॉज they should know. So she is proudly say always wherever in school everywhere, मेरी मम्मा देख के बता रही कि झूठ मत बोल,
मैं मम्मा से पूछ लूंगी, ऐसे करके बच्चे करते हैं। तो मैं आपको क्यों बता रही हूँ ये, चाहे आपका बच्चा है, चाहे आपके हस्बैंड है, चाहे आपके भाई बहन है, चाहे आपके दोस्त हैं, कोई कितना भी प्यारा हो सगा, यू हैव टू कंप्लीट द एनर्जी एक्सचेंज विद देम। अगर आपका एनर्जी एक्सचेंज उनके साथ कंप्लीट नहीं होता तो अनइंटेंशनली यू आर एंटेंगल्ड विद देयर कर्मा। तो थोड़े दिन पहले मैंने आपको कर्मा के बारे में भी बताया था कि वी नेवर नो कि उस पर्सन को 365 डेज सफर करना है। दैट पर्सन कैन बी योर बच्चा, योर स्पाउस, है ना, सिस्टर, ब्रदर, सिबलिंग्स, एनीबडी। आपको तो बहुत तरस आ गया, बहुत प्यार आ गया कि नहीं नहीं मेरी फैमिली है, मैं इनसे कैसे मांगू। डोंट हेजिटेट, आप उनके भले के लिए कर रहे हो। बिकॉज अगर उन्होंने अच्छे से अभी पे नहीं किया तो आप उनके कर्मा और बढ़ा रहे हो। उनको 365 डेज में पे करना था, आप हीलिंग कर रहे हो और वो आपको कुछ नहीं दे रहे, आपने ही नहीं मांगा क्योंकि आपने हेजिटेट किया, तो उनका फॉल्ट नहीं आ गया। तो उनको 365 की जगह पे अब 465 100 डेज ऐड हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने और ले लिया, उनको तो देना चाहिए था। तो एनर्जी एक्सचेंज कंप्लीट नहीं हुआ। So never hesitate. You can ask your family members maybe anything. You get me something. My favorite. Okay, मेरे को आज चाय पिला दो, स्पाउस का किया तो ओके ठीक है, गिव मी वाटर। तो इट कैन बी एनीथिंग, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट मनी, पैसे की बात नहीं कर रही। बट अगर आपने अपनी फैमिली मेंबर के लिए किया, सिबलिंग्स के लिए किया, फ्रेंड्स के लिए किया, जस्ट टेल देम टेक मी आउट फॉर अ कॉफी, आज चलो पानी पूरी खाने ले जाओ मुझे। इट कैन बी एनीथिंग, जो भी आपको अच्छा लगे, मुझे एक चॉकलेट ला दो। तो आप यू कैन आस्क एनीथिंग। सो इस तरह से आप उनके साथ कुछ भी लेकर उसके बदले में आप अपना एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। जस्ट ठीक है, तो एनर्जी एक्सचेंज आई होप यू गेट इट वेल, ताकि इससे आपका भी भला हो और उनका भी। और आपने अनजाने से उनके कुछ भी नहीं लेके उनको हील कर दिया और एनर्जी के साथ आप एंटेंगल हो गए, देन यू विल से उसकी प्रॉब्लम मुझे क्यों आ गई। तो उनकी प्रॉब्लम हमें कभी नहीं आती, किसी भी रूल में, नियम में ऐसा नहीं लिखा कि किसी की प्रॉब्लम हमें आ जाएगी। बस थिंग इज कि हमने उसमें एनर्जी को अच्छे से कंप्लीट नहीं किया, तो वो एनर्जी को कहीं तो जाना है, बिकॉज एनर्जी मेंट टू बी फ्लो। एनर्जी को आप रोक नहीं सकते। तो जब वो आपके द्वारा फ्लो को कंप्लीट नहीं हुआ तो वो आपके अंदर ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देगा। दैट्स इट। तो अगर ये आप छोटे छोटे नियम जो है, रूल है, अगर ये आप दो नियमों को फॉलो करते हो, सबसे पहला प्रोटेक्शन, दूसरा एनर्जी एक्सचेंज को कंप्लीट करें। जब आप दोनों नियमों को फुलफिल करते हो, सेटिस्फाई करते हो, कुछ भी नहीं होने वाला आप। मैंने बहुत बड़े बड़े ब्लैक मैजिक वाले केस भी सॉल्व किए हैं, तो कभी कुछ नहीं होता। बस दो दो नियम, क्योंकि आपको एंटेंगल नहीं होना। जब आप उससे एनर्जी एक्सचेंज नहीं ले रहे, इट मीन्स यू आर एंटेंगलिंग। फालतू में जाके अपना बीच में हम पढ़ रहे हैं, किसी ने हमें बुलाया नहीं, पूछा नहीं, राइट। और दूसरा, जब हमारी प्रोटेक्शन वीक है, जब हमने अच्छे से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं किया, तो हम अपने आप में वीक हैं और मेरे पास मेरे अस्त्र शस्त्र तो है नहीं, मेरे वेपन्स तो पूरे हैं नहीं, और मैं कूद के ही मैदान में लड़ने के लिए, तो आई विल गॉट हर्ट। सो सिंपल थिंग है। तो प्रोटेक्शन कंप्लीट रखो, एनर्जी फ्लो को कंप्लीट रखो, तो ये आपकी गाड़ी के वो दो पहिए हैं जो आपको कहीं पे भी गिरने नहीं देंगे। आप भागोगे ही भागोगे। गुड टू गो। ये बहुत अच्छा था, इम्पोर्टेंट था अच्छे से, भले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पकड़ के रखोगे, कोई बीमारी नहीं आएगी किसी की आपको, चाहे आपको उसी भी चीज को हील कर लो, कुछ भी कर लो। कोविड 19 में आपको नहीं पता कि हमने एक नॉमिनल फीस, क्योंकि उस टाइम पे सबको मुश्किल थी, बट स्टिल वी आर चार्जिंग। पर और लोग पूछ रहे हैं, मेरी फैमिली मेरे से बोल रही है, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, तुम उनको बोल रहे हो 50 रुपए दे दो महीने के। वी हैव टू टेक। अगर आप बहुत पुरानी सोशल मीडिया पे जाके पोस्ट चेक करोगे ना, तो वी वर चार्जिंग ओनली 51 रुपीज फॉर 1 मंथ हीलिंग एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द कोविड ओनली, ईच मेंबर ऑफ योर फैमिली। तो जितने भी मेंबर्स हैं, हर मेंबर का 51 रुपीज दे के लोगों ने हीलिंग करवाया। एंड आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम प्राउड ऑन रेकी इवन, कि किसी बंदे को भी कुछ नहीं हुआ, जिसने भी वो रेकी की हमसे वो लिया था, उस टाइम पे वो पैकेज किया था, मास हीलिंग एम्पावरमेंट के नाम से था। हर बंदा एकदम ठीक था, तंदुरुस्त था। आज भी मैं अगर अपने घर से, अपनी फैमिली से, जो कि इंडिया में अमृतसर में है, मैं इतनी दूर उनसे बैठी हूँ, आई एम नॉट वरीड अबाउट एनीथिंग। बहुत कुछ हो रहा है उधर भी। माय ब्रदर इन लॉ मेट विद एन एक्सीडेंट, his this bone has broken, and my father
जस्ट गॉट यस्टरडे, नो डे बिफोर यस्टरडे, उनका मोतिया कैटरेक्ट का उनका ऑपरेशन हुआ, उनको मोतिया आ गया आंख में। तो लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपनिंग, बट आई एम हियर क्वाइट एंड एंजॉयिंग, आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड, बिकॉज आई नो विकी इज देयर टू हेल्प, टू हील। मेरा एक ही काम है, सुबह उठ के उनको हीलिंग कर दिया, प्रोटेक्शन में डाल दिया। नाउ इट्स देयर ऑन कर्मा, मेरा कर्मा, मैं जितना उनके लिए कर सकती हूँ मैंने कर दिया। नाउ वॉट एवर इज देयर, अपना रोल तो सबको अच्छे से निभाना ही है ना। सो आई एम डन माई पार्ट। तो दिस वे, तो वहां से ही मुझे आइडिया भी आया था कि मैं सबको ग्रुप में हीलिंग करूं। तो ये चीजें आपकी एनर्जी एक्सचेंज को कंप्लीट करते हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी को कंप्लीट करते हैं, आप जितना देते हो। तो मैंने अपनी स्टोरी ये थोड़ी सी इसलिए बताई ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको। मैं भी आज की डेट में भी, अगर मेरे हस्बैंड मेरे से कुछ पूछते भी है ना कि मुझे एक मीटिंग करनी है या मुझे कोई नया करना है स्टार्ट, टेल मी समथिंग, सो ही नो माय रूल, ही ऑलवेज पे मी फर्स्ट एंड देन आस्क। वो तो अब जब पैसे लेके ही आते हैं ना, ये गिफ्ट लेके आते हैं, तो मैं समझ आती हूँ, बताओ क्या पूछना है, बताओ क्या जानना है। तो वी नो नाउ, मेरी डॉटर को भी अभी पता है, तो वो भी ऐसी आएगी। उसका तो एक फिक्स है 1000 का, यहाँ पे 1000 चलता है, तो जब से यहाँ पे आई है वो एक 1000 का उसका फिक्स है। वो आएगी, रखेगी, मम्मा जल्दी जल्दी कर दो। क्या जल्दी जल्दी कर दूं? अच्छा जल्दी जल्दी ये वाला काम कर दो। मैं बोलूँ इस काम के लिए ये पैसे बहुत कम है, जाओ। मतलब वो काम नहीं कर सकती, बोरिंग सा है, नहीं करना चाहिए। फिर मैं उसको बोलूंगी जाओ। अच्छा नहीं हो सकता, रहने दो। फिर मैं भोलेनाथ जी को बोल देती हूँ। तो मतलब अगर मम्मा नहीं कर सकती तो कुछ, फिर वो जाएगी ऊपर, फिर वो मंदिर में जाएगी और आंखें बंद करके कुछ ना कुछ बोलेगी, मतलब मुझे फील कराएगी। तो वो बच्चा है, चलो उसका वे है, बट आई एम टेलिंग टू द हैबिट ऑफ माई फैमिली ऑल्सो। आई एम शेयर्ड कि उनकी हैबिट ऐसी। सो विद दिस, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने आपको लेवल 1 का जितना कंटेंट था या जो किसी चीज से रिलेटेड मुझे जो याद आया, मैंने आपके साथ सब शेयर किया। अभी इट्स नाउ ऑन यू कि आपको अपनी डेली प्रैक्टिस करनी है, 24 बॉडी पार्ट्स 21 डेज के लिए करनी है। और जैसे जैसे आप अपनी प्रैक्टिस करोगे, जिसका जिसका मुझे फील आएगा, आई विल शेयर योर सर्टिफिकेट्स इन द ग्रुप। कोई भी डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आता है, तो आप पूछिए। आप जितनी अच्छे से, शिद्दत से प्रैक्टिस करोगे, मैं उतनी जल्दी आपको लेवल 2 कराऊंगी, बिकॉज देर इज नो, ओके, क्योंकि इसमें कोई वो नहीं है कि आपको, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 1 महीना 2 महीना प्रैक्टिस करोगे तभी आप लेवल 2 कर सकते हो। लेवल 2 के बाद फिर आप 21 दिन या 20 दिन या महीना प्रैक्टिस करोगे, तब आप रेकी लेवल 3 कर सकते हो। तो देर इज नो टाइम लिमिट कि आपको कब कर सकते हैं। डिवाइन एनर्जी के पास कोई इस चीज की टाइम लिमिट नहीं। वेन यू आर कैपेबल यू कैन डू, वेन यू आर कैपेबल यू कैन डू। और रेकी लेवल 2 करने से आपको एक बेनिफिट पता और क्या होगा, आप अपनी हीलिंग फास्ट कर लोगे, जल्दी कर लोगे, आपको टच नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये है, क्योंकि आप टच कर रहे हो तो हाथ थक जाते हैं, ये चला जाएगा। नंबर 2 बेनिफिट क्या आएगा, आपके पास सिंबल आ जाएंगे, तो आप आराम से हीलिंग को, जो है, जो अभी की 1 आवर 15 मिनट्स 10 मिनट्स आपको लगते हैं या लगेंगे, वो आपके रिड्यूस हो जाएंगे 40 मिनट्स में। 30 to 40 मिनट्स में आपकी फुल बॉडी पार्ट्स, 20 बॉडी पार्ट्स, 24 बॉडी पार्ट्स, वो 40 मिनट्स में ही आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप 7 दिन में बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करती हूँ, अगर आप अच्छे से करोगे, बिकॉज राइट नाउ आई हैव डोंट हैव एनी शेड्यूल, तो मैं आपके साथ वो शेयर करूँ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप पूछ लीजिए। Excuse me. हाँ जी। I think in the first class you told something about workshop on auras and chakras. Chakra, yes, it's already Three. recorded on the YouTube, so I will just share the link today. Thanks for reminding me. Thank you. Yeah. Because that is very essential for us. हाँ, I will do that today. Okay, so अभी And मैं आपके can we साथ proceed to level 2 only after these 21 days of practice? यस, मैंने अभी वही बताया कि 21 दिन आपको करना है, लेकिन अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, डेली सब लोग प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि अभी भी देखो ग्रुप तो बड़ा है, बट प्रेजेंट सिर्फ 14 15 16 लोग ही होते हैं। उसमें भी देखो सबके कैमरास ऑफ होते हैं, तो थोड़ा लगता है पढ़ाने में थोड़ी एनर्जी फील नहीं होती, बट दैट्स फाइन, आई एम कम्प्लीटली, आई अंडरस्टूड ईच पार्ट, आई रिस्पेक्ट एवरीबॉडीज प्राइवेसी। तो थिंग इसकी, फिर आप थोड़े लोग ज्यादा बढ़ो तो देन आई टीच लेके लेवल 2, बिकॉज मेरा तो मिशन है ही ना, मेरे को तो 1000 मास्टर हीलर बनाने, लेवल 3 कराना है। 1 and 2 इज कम्प्लीटली फ्री।
3 के लिए अभी Okay, कोई okay. प्लान नहीं है, विल थिंक, बिकॉज वो सामने से भी डेस्परेशन चाहिए ना, आप सीख लो रख लो उसके बाद यूज नहीं करो, तो देन इट्स डजंट मेक सेंस, है ना। Okay, okay. हाँ, तो आप प्रैक्टिस करो अच्छे से, when I have a calling, so definitely I will come with some other beautiful things. Any other question? Vinuji, I wanted to ask you Hmm? that when we can do the group healing. ग्रुप हीलिंग आप लेवल 1 में कर सकते हो, बट वी डोंट प्रेफर, लेवल 2 में डेफिनेटली वी लर्न. Okay. Yes. Then we can put the symbols for all. Yes. Then we'll use the symbol, where to do, how And to do. even when we want to energize some, function is there. So Yes. energize the room, then that the function should go well, Yes. and all those things Yes. can do that also, no? Yes. Everything. Anything you can do with Reiki level 2. वो तो beyond time, beyond limit हो जाता है. And is this, I am actually done masters in Reiki. Yes, I know that. That's what I'm thinking while you are asking me this question. No, I am asking because there is a reason which I cannot tell here. So that's why, I wanted, because see, actually, I mean, there were many things. So I stopped practicing itself, Hmm. That's the reason. Okay. So then I thought, I don't know, somehow it came to me, not only now, long time back, that why did Okay. I stop? Because many people told me many things and I got scared and I stopped. So that is the reason, That I said, now you are doing, so I'm always, what to say, with you, and I always, whatever you Yes. say, हाँ. for me, that is the ultimate thing. थैंक यू So, सो मच. आप इतने बड़े हो, इतना होकर आप मुझे ये बोलते हो, इट्स रियली ब्लेसिंग्स फॉर मी. नहीं, मुझे ऐसे लगता है ना, आपके साथ मेरा ऐसा कनेक्शन है कि मैं आपको कभी भी कुछ भी पूछ सकती हूँ, आप मुझे बता देते हो. डेफिनेटली वो और तो मेरी क्यूरियोसिटी एकदम यहाँ पे ना सॉल्व हो जाती है, तो इसलिए मुझे लगता है कि नहीं, यू आर माई बेस्ट मेंटोर. थैंक यू सो मच. ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. इट मीन्स अ लॉट, नॉट लॉट, इट मीन्स एवरीथिंग फॉर मी एक्चुअली, कि आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका फेथ, ये मुझे और स्ट्रॉन्ग करता है कि मैं और चीजें करूं. नहीं यू नहीं, नो आप हमेशा टू द कोर सिखाते हो हमेशा. मैं तो सबको कहती हूँ, मैं कहती हूँ चाहे छोटे हैं मेरे से, लेकिन मुझे मेंटोर्स जो भी मिले हैं ना, बहुत अच्छे मिले हैं. मे बी इट इज बिकॉज आई वांट टू लर्न, माय सोल इज कॉलिंग, दैट इज द रीजन. यस, इट्स जस्ट अ सोल कॉलिंग. समटाइम होता है ना, जैसे स्टूडेंट ही अच्छे होते हैं, टीचर्स तो उनकी वजह से अच्छी बन जाती है, क्योंकि स्टूडेंट अच्छा नहीं, कर आज जाते हैं. देखिए मैं आकाशी के लिए आपके साथ कितना पीछे पड़ी थी. And एग्जैक्टली. today, with God's grace, I am not proud of it, but I am very grateful to you that I can do it very well. Very well. Very good. It's your practice actually. You understood the concept well. So now it's all your practice, your dedication. जो desperation है करने की, कि जितना मैं हाँ, अच्छा वही है. कर पाती हूँ, कि अच्छा कर पाते हैं, तो उतना ही हमें आज सामने से जब अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, वी गेट मोर पावर एक्चुअली. तो जितना हमें आप अच्छा फीडबैक देते हो, आप बोलते हो, तो मुझे देखो कितना करेज मिला आज. तो मेरे सामने एक न्यू चैप्टर है, आई एम सॉल्विंग, मैं उसके पीछे पड़ी हूँ. So soon I will solve that. So Yes, that and we will can be, learn. yes. So this thing. Okay. So हाँ जी, आपका अभी क्वेश्चन है कोई, आरसी जी? What's your good name actually? Your full name? My name is Reshma Jivani, Reshma Jivani. You are from Mumbai. Mumbai. Okay. Good. Good to know. Yeah. Yeah. Tell me. So my question was based on your energy exchange. So during COVID times, I'm a counselor, basically a psychologist, Yes. and I was counseling free. Hmm. Okay. And some cases went on for a very long time, even after the period of, and I never took anything. Hmm. Um, and I have that fear that something has come to me. Those difficulties are now coming to me. Yes. Um, so now what I do is I ask people, I don't take anything. I tell them to donate to some charity which I like. Is that good enough? Yes. This is very good idea also. We also does that. Last year मैंने आपको बताया कि रेकी लेवल 1 हर महीने की 12 तारीख को फ्री में सिखाती थी.
4 दिन का, ये 5 दिन का जो होता था, तो चाहे उसमें एक बंदा आता था, चाहे 2 आते थे, चाहे 10 आते थे, तो इट हैपेंस मीन्स एवरी मंथ, वो रूटीन था कि हर महीने सिखाना है. So that time I've never charged anything, and this time also I have not charged anything. I'll tell you that later. So I always tell them donate something on my name. So you have to tell that to donate on my name. ठीक है, मैं Okay. डायरेक्टली नहीं लेना चाहती, मेरा मन नहीं है. या फिर कई बार सामने वाले का मन नहीं होता, वो बोले देखो लास्ट में मांग ही लिया ना, लास्ट में बोल ही दिया, बोला था कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, बट नाउ दे सेड अच्छा मेरे को कुछ दे दो, है ना, जो भी आपका मन है, मीन्स कुछ तो उसको चाहिए ही. तो फिर पर्सन भी आजकल सोचता है कि किसकी क्या वैल्यू है, यू नो, वी आर ऑल सो स्मार्ट एंड बी प्रैक्टिकल, डोंट माइंड एंड डोंट टेक इट अदरवाइज ऑल्सो. सो वी आर ऑल स्मार्ट, आई विल थिंक अच्छा वो बाहर कितने लेता है काउंसलिंग का, 2000 लेता है, चलो ठीक है फिर मैं इनको 1000 ही दे देता हूँ, इससे कम क्या ही दूं या क्या ही करूं. तो ऐसे करके एक परसेप्शन, एक थॉट, कुछ ना कुछ बनता है. तो बेटर टू से दैट डोनेट ऑन माय नेम. Okay. दिस इज वेरी गुड आइडिया, वी ऑल्सो डज दैट. कई बार नहीं होता मन लेने का, कुछ होता है. इवन माई यू नो माई रियल मासी, माई मदर सिस्टर, वो हमेशा हीलिंग देती हैं, बट जैसे कि आपको पता है फैमिली में वो बोलेंगे बच्चे भी ना आजकल के, इनको पैसे की पड़ी रहती है. तो व्हेन आई हेयर्ड दिस, तो इट्स यू नो पेन मी, देन आई फेल्ट ओके, नेक्स्ट टाइम जब वो आए उन्होंने मुझे पैसे दिए और मैंने लिए, और फिर मैंने उनको डबल करके कुछ उसका उनको कुछ आया था, तो आई गेव हर गिफ्ट. और उसके बाद बोला कि मासी जी आपके आज के बाद आप कभी भी हीलिंग करवाओगी तो मुझे मत देना, आप ऐसा करना कि आप ना किसी को चाय पिला देना, हमेशा जब भी आप हीलिंग लो ना, तो आप किसी को चाय पिलाना मेरी तरफ से. आप ये Okay. सोचना कि आप मुझे पिला रहे हो, क्योंकि मैं तो आपके पास नहीं आ सकती डेली, बट आप किसी को Yeah. चाय पिलाना. तो शी इज डूइंग दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस ऑन माय नेम, Okay. है ना. तो इट्स रीचिंग टू मी. Yeah. तो मे बी कभी कोई Yeah. ऐसा टाइम आ जाए जब मुझे कोई चाय पिलाने वाला ना हो, यू नो, तो इट विल रीच टू मी. सो थिंक दिस वे. Yeah. तो कुछ भी लगाओ, Okay. इट विल रीच टू यू, है ना. जब आपके नाम पे कोई दे रहा है, कर रहा है, तो वो कैसे भी किसी भी तरह से आप तक पहुंच जाएगा. Okay, so now the strength is going Yeah. down, but I would like to announce something. I would like to say something. इस मैसेज को अपने ग्रुप में, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ पहुंचाना. So this is all about that enlighten buzz और a wisdom gaze. मिलकर विजडम गेज मेरे बहुत ही प्यारी फ्रेंड निशा जी के साथ मिलकर हम इसको चला रहे हैं, मिलकर एक नई शुरुआत कर रहे हैं, एक जर्नी जिसमें हम सब मिलकर एक दूसरे को रोज थोड़ा यू नो एम्पावर करेंगे, थोड़ा कुछ सीखेंगे, और रोजाना थोड़ी सी पॉजिटिविटी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और थोड़ी सी क्लैरिटी एक दूसरे को देंगे. बस एक छोटी सी मंथली सब्सक्रिप्शन के साथ, ये जो मॉड्यूल है ये एक सब्सक्रिप्शन के साथ होगा, पर असर जिंदगी भर का होगा. यू विल चेंज योर लाइफ कंप्लीटली, राइट. तो हमारा सपना है कि 2030 तक हम 1 मिलियन वुमेन्स को एम्पावर करें. तो ये बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ही होगा. तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी इस सफर का हिस्सा बनिए, किसी को याद दिलाएं कि वो भी कितने पावरफुल हैं. वी ऑल आर पावरफुल. मिलके इस मिशन को फैलाते हैं, क्योंकि हर रोज थोड़ा सा उठना भी एक रेवोल्यूशन ही है, ये हमारा मानना है. तो आई रियली रिक्वेस्ट कि आप ये मैसेज सब तक पहुंचाएं. और जैसे भी इसके बारे में हम डिसाइड करते हैं कब इसके ऊपर कुछ वेबिनार करते हैं, तो यू विल गेट ऑल द मैसेज, एवरीथिंग. सो स्टे ट्यून्ड टिल देन. So if you have any other question related to our session, so most welcome. Or I'll take a Please leave now. explain it in English. Sorry. Excuse me. Please comment in English. The last point what you told. The last point, enlighten buzz and wisdom gaze together, we are starting a new you know revelation, that a journey where we'll all come together and you know empower the women. So this is just a small Okay. thing we are going to start. It will start with a monthly subscription. We'll start with a monthly subscription. Very you know nominal amount will be there. And for this our 2030 we have a plan to empower 1 million women. So let's spread this to each and everyone, so that everybody can take the benefit of this. Thank you so much. Definitely. And finally, if you don't mind, don't think otherwise. No, tell me. May I know your name? Venus. Venus as Mera. Venus. VEENUS. Yeah. It's a planet. Thank you. Yeah. Yes, I know that. Yeah. Thank you. Very so much. powerful planet. Actually, nowadays a required planet. Yeah.
So Yes. actually, my father kept my name, and I am in, I'm so much in love with my name. तो आजकल तो हो Good. गए थोड़े, काफी लोगों को सुनने में आ जाता है, सोप बन गया, कोई स्कूल है, कोई कुछ है, बट व्हेन आई स्टडीड इन स्कूल नोबडी हैज दैट नेम. तो मुझे शुरू से ना थोड़ा Yes. यूनिक करने का मन रहता ही था कि मेरा नाम यूनिक है. सो इट्स माय ठीक है. ओके, सो Really good. थैंक यू सो मच. आप सब लोग मेरी इस जर्नी का हिस्सा बने. मैंने जो फ्री में रेकी लेवल 1 को सिखाने का था, आप उसका पार्ट बने, उसके लिए थैंक यू सो मच. एंड प्लीज Thank you. मोटिवेट, Thanks a lot. थैंक यू. इसी तरह से मुझे मोटिवेट करते रहे, जुड़े रहे Thank you, साथ में. ma'am. थैंक यू सो मच. प्रैक्टिस करें. आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप मैसेज डालें ग्रुप में. आई विल ट्राई टू गिव यू Sure. आंसर एज सून एज पॉसिबल, बट प्लीज प्रैक्टिस मत छोड़ना. हाथ जोड़ के No, no, विनती है. we will do it regular. हाँ, मेरे को बहुत Of अच्छा course. लगेगा प्रैक्टिस करोगे, बिकॉज आई रियली वांट टू हील एवरीवन. मैं चाहती हूँ हर घर में एक पर्सन हो जिसको हीलिंग आती हो, ताकि आप अपने घर की अपनी सारी प्रॉब्लम्स, एक्चुअली में प्रॉब्लम प्रॉब्लम होता नहीं है, इट्स ऑलवेज द सिचुएशन. हम उसको प्रॉब्लम Yes. बोलकर उसकी वोकैबुलरी, मतलब आई टेक अ वोकैबुलरी करेक्शन क्लासेस आल्सो. सो वोकैबुलरी को करेक्ट करना सीखो. हम क्या बोलते हैं, अच्छा मैं एक जाते जाते बता देती हूँ. पहले के टाइम पे, आजकल हमारा इंग्लिश में एक वर्ड हो गया, जिस किसी को भी हम मिलते हैं तो हम उसको बोलते हैं हाय, है ना, HI, हाय. तो हम हाय बोलते हैं. तो इट्स एन इंग्लिश वर्ड, बना तो इंग्लिश में है, बट इन इंडिया अगर आप वैसे ही देखो तो ये हमें बहुत नेगेटिव एनर्जी से कनेक्ट करता है. नाउ व्हाई एंड व्हेन एंड हाउ. So when in the ancient time, when somebody passed or died in a family, so how people used to say, मैसेज कैसे कन्वे करते थे, तो वो इस तरह से अपने आप को मारते थे, हाय हाय ऐसे करके कुछ करते थे. What I have not seen that, but I have heard a lot. जब मैंने हीलिंग करी और मैंने किसी के साथ कनेक्ट किया जब, तो आई गॉट दिस आंसर कि उनकी वो एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है. So this high word actually contains so much of negative emotions and negative feelings. तो जब भी हम किसी को हाई बोल रहे हैं तो हम उसको एक्चुअली में नेगेटिव एनर्जी थोड़ी ट्रांसफर कर रहे हैं. तो इसलिए हम अपनी वोकैबुलरी को अगर ठीक करते हैं तो आप अपनी लाइफ को बहुत हद तक, बहुत अच्छे लेवल तक ठीक कर लोगे. तो जस्ट ऑलवेज थिंक ट्वाइस बिफोर से. आजकल हम ये भी बोलते हैं हम तो बहुत बिजी हैं, मैं तो इतना बिजी हूँ, मेरे पास तो मतलब निकल ही जाता है, मैं तो मतलब मरने के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं है. ऐसे भी मैंने सुना है लोगों को बोलते हुए. तो इतना बिजी हम अगर अपने आप को बोलेंगे तो लिटरली आपका लाइफ ऐसा बन जाएगा, आप इतने बिजी हो जाओगे, क्योंकि यू आर अट्रैक्टिंग दोज वाइब्रेशंस. एंड यू विल बी सो मच दैट रियली यू विल डोंट हैव टाइम टू ड्रिंक वाटर. पानी टेबल पे पड़ा रहता है लेकिन पीने का टाइम नहीं लगता. खाना तो मैं बात ही नहीं कर रही खाने की, है ना. तो फिर हमारी डिहाइड्रेशन हो जाता है, हम बीमार हो जाते हैं, देन वेंट टू द हॉस्पिटल, फिर वही लेवल आ जाता है. वी अट्रैक्ट सो मेनी ऑफ नेगेटिविटीज. सो इसलिए वोकैबुलरी को हमेशा सोच समझ के, बहुत ही ढंग से, प्यार से सोच कर यूज करें, ताकि हम अपनी लाइफ को और अच्छे से हील कर पाए. विद दिस आई एम Good टेकिंग point. अ लीव नाउ. थैंक यू. So we Thank are you. just Reiki family now. Thank you Thank so you, much. ma'am. Reiki flow for Thank your you. highest good always. तो एक मंत्र और बना लेना, Reiki always with me. उठते Thank बैठते you. कभी भी लगे ये बोल. थैंक यू. थैंक यू. बाय. टेक केयर. बाय नमस्ते. बाय बाय. Thank you. Divine love to all. थैंक